Can everyone hear me and see my screen clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, question number 1. Find the surface area of cuboid whose length, breadth and height are 20, 10 and 8 centimeter respectively. बहुत easy question है, formula based है. So I think बहुत लोगों ने शुरू भी कर दिया है. Still I'll write the formula. तो whenever they say surface area, we will always consider it as total surface area, which is 2 bracket LB plus BH प्लस LH. ठीक है, इसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है. L 20 सेंटीमीटर है, B 10 सेंटीमीटर है और H 8 सेंटीमीटर है. जस्ट पुट द वैल्यू, calculate and find the answer. Yes, what's your answer? So one of the answer is 760 centimeter square. If somebody else gets, please confirm. Sir, 880. Okay, so this is wrong, some mistake. Sir, answer is coming as 880. Okay, 880 it is then. Let's check. क्या मिस्टेक किया? ठीक है. Find the surface area of cube whose edge is 12 सेंटीमीटर. बहुत इजी है. एज जब क्यूब की हम लेते हैं तो विल यूज द सिंबल ए. 12 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया मतलब टीएस है, टोटल सरफेस एरिया विच इज 6a स्क्वायर. प्लीज फाइंड इट आउट. सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्लीज कंफर्म समवन. इज इट करेक्ट? Yes. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि इजी क्वेश्चन है. The dimensions of a cuboid are in the ratio 1:2:3 and its total surface area is 198 meter square. Find the dimensions. देखो dimensions का ratio दिया है तुम्हें and you have been given total surface area. You have to find the dimensions. So let the length be 3x. सबसे बड़ी जो होती है वो लेंथ होती है. फिर सेकेंड नंबर वाली होती है ब्रेथ 2x और हाइट जो है उसको 1x या फिर x ले लेंगे. ठीक है. और we'll write down the formula for total surface area which is 2 bracket LB plus BH plus LH. LB और H की जो भी वैल्यूज है हम सब्सटीट्यूट करेंगे. टोटल सरफेस एरिया की जगह लिखेंगे 198. ये 2 को ये साइड डिवाइड कर देंगे. L की जगह आएगा 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू x प्लस x इंटू 3x. 198 बाई 2 कितना होता है? 99 होता है, which is equal to 6x square plus 2x square plus 3x square. So 99 is equal to 11x square. So x square is equal to 9. That means x is equal to 3. प्लस माइनस 3 कभी नहीं लेना है इस चैप्टर में क्योंकि माइनस का कोई सवाल ही नहीं होता. दिस इज सरफेस एरिया वॉल्यूम. यहाँ पे सारे आंसर पॉजिटिव होते हैं हमेशा. ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई. नाउ substitute the value of x in length, breadth and height. So you get the length as 3 times 3 which is 9 centimeter, breadth as 6 centimeter and height as 3 centimeter. 9, 6 and 3 is the correct dimensions. Right? Next question. A cuboidal
cuboidal what? A cuboidal object has total surface area of 80 meter square and lateral surface area is 36 meter square. Find the area of the base. Beautiful question. Very nice question. देखो तुम्हें दिया है टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया और तुम्हें ढूंढना है एरिया ऑफ बेस. ऐसे थोड़ी होता है. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ. Don't write anything, just look here. Suppose this is your cuboid. You know ना how to draw cuboid. ये भी एक स्किल है, ये सीखना चाहिए तुमको. ये क्यूबॉइड है तुम्हारा. Pritha, Pritha, can you hear me? Yes, sir. I was expecting you today in classroom. Oh, sir, actually, I had some sore throat. That is the reason I didn't come. Good, good, no problem. Take care. Yes, sir. ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है. ठीक है, इसमें टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस. 6 फेसेस का टोटल एरिया और लैटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स. ठीक है, तो हमें 4 वॉल्स का एरिया दिया है और 6 वॉल्स का एरिया दिया है. तो 6 फेसेस का एरिया दिया है. तो 6 फेसेस माइनस 4 वॉल्स का एरिया अगर मैं कर दूं तो मुझे किसका एरिया मिलेगा? टॉप का और बॉटम का. एग्जैक्टली. और टॉप और बॉटम क्या है? दे आर ऑफ द सेम शेप बिकॉज क्यूबॉइड इज अ यूनिफॉर्म फिगर, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट? सो 2 times area of base is equal to TSA minus LSA. Can I write this statement? कुछ भी गलत नहीं है इसमें, है ना? So 2 times area of base is equal to 80 minus 36. Can you tell me what is 80 minus 36? 44 by 2. That is 22 centimeter square is the area of base. Online, did everyone understand this technique? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Manas, are you there? Yes, sir. Did you understand this? Yes, sir. Good. Three cubes, each of 5 centimeter side, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. So they have shown you how these 3 cubes will look like when they are joined end to end. अब ये क्यूबॉइड बन जाएगा. तीनों क्यूब को ज्वाइन करने से जो नया शेप बनेगा वो क्यूबॉइडल होगा. Yeah, so you have to find the surface area of resulting cuboid. Now, can you tell me कि if I do this thing, that I find the surface area of one cube, Kanishka, and I multiply it by 3. Simple में आ जाएगा ना आंसर? क्यों नहीं आएगा? हाँ तो इंटू 3 कर देंगे ना, तीनों तो एक जैसे ही है. Each of 5 centimeter length. एक का सरफेस एरिया निकाल लूंगा और इंटू 3 कर दूंगा तो आ जाएगा ना आंसर. What do you think? Will it come or not? No. She doesn't agree with you. Why? There is one surface which is hidden when both the cubes are joined.
इनफैक्ट टू सरफेसेस ऑफ ईच क्यूब्स आर जॉइंड, और उस सरफेस का एरिया हम नहीं ढूंढेंगे। हम कौन सी सरफेस का एरिया निकालेंगे? जो एक्सपोज्ड सरफेस है। एक्सपोज मतलब जो दिख रही है, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो ये सरफेस का एरिया निकालने की जरूरत है हमको? नहीं। वैसे ये वाले सरफेस के एरिया निकालने की जरूरत है हमें कनिष्का? नहीं। तो हम लोग एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया टाइम्स 3 कर नहीं सकते, वो गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ वी हैव टू फॉरगेट दैट देयर वर एनी क्यूब्स. Now we have to see the bigger picture. That means we have to acknowledge that there is a new cuboid. तो ये जो कनिष्का, ये जो नया क्यूबॉइड है, उसका लेंथ कितना है? नया शेप जो दिख रहा है ना तेरे को क्यूबॉइडल, उसका लेंथ कितना है? 15 है ना बेटा लेंथ। 5 + 5 + 5 सबसे जो ज्यादा होता है, लंबा होता है, वो लेंथ होता है सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है और हाइट कितना है? समझा? तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल गया तेरे को नए क्यूबॉइड का। अब उसका टीए से ढूंढ ले। क्यूबॉइड का 2 ब्रैकेट LB + BH + LH। डन? व्हाट डिड यू गेट? 350 it is. Correct. Next question. A magician wants to take his stick measuring 28 centimeter in his luggage box. The dimension of his luggage box are 26 by 15 by 3 centimeter. Can he put his stick in the box? संजोत। मैजिशियन की स्टिक की लेंथ है 28 सेंटीमीटर। बॉक्स में तो कोई भी डायमेंशन 26 से बड़ा है ही नहीं, नहीं लेके जा सकता। तो अगर ये बॉक्स ऐसा है, बॉक्स या बैग या जो भी है लगेज उसका, ऐसे 26 है और ऐसे 15 है और ऐसे 3 है, ठीक है? ऐसे तो रख नहीं सकता लेंथ वाइज। रख सकता है, डायगनली रख सकता है क्या? मतलब अगर मैं इसको ऐसे इमेजिन करने बोलूं तुमको, तो ये एंड से ये एंड से ये ऊपर वाले एंड तक, फ्रंट बॉटम से अक्रॉस, ऐसे रख सकता है क्या स्टिक को? बट उसका लेंथ ढूंढना पड़ेगा ना हमने। वो अगर 28 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा डायगोनल का लेंथ, तो ढूंढ सकता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड? √of L² + B² + X². करेक्ट। तो तुम पहले डायगोनल ढूंढो, एंड इफ द डायगोनल कम्स आउट टू बी स्लाइटली बिगर देन 28 सेंटीमीटर, then he can take the stick with him, otherwise he cannot.
नहीं लेके जा सकता? कितना आ रहा है? रूट ऑफ वॉट? टेल मी जस्ट दैट. हाँ लेके जा सकता है. 30 का स्क्वायर 900 होता है. 28 का 984 कैसे होगा? 784 होगा. हम्म. सर इस क्वेश्चन में डायगोनल फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे तो सबका स्क्वायर दिया है और होल स्क्वायर रूट दिया है, तो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बीच में प्लस की साइन है बेटा. बॉड मास फॉलो करना है. सो पहले स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है, और फिर रूट ढूंढना है. किसी का नहीं है. Sir, 30 पॉइंट समथिंग आएगा. बताता हूं मैं. हाँ बोलो. sir, it cannot happen व्हाई इट कैन नॉट because it हैपन? will be a root of 910. हाँ तो रूट ऑफ 30 इज 900 ना बाबा. Square of 30 is 900. So Yes. root of 910 will be greater than 30. Our stick is just 28 centimeter. Yes. So he can take it, definitely. So you can write like this. Root of 910 is greater than 30 square, which is 900. Hence, he can easily fit the magic wand into his box. ऐसे ही लिखा है. देखो ये लोग ने भी वैसे ही लिखा है. रूट ऑफ 910 इज ग्रेटर देन 28 and hence he can put his stick by placing it along the diagonal of the box. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of the length, breadth and height of cuboid is 16 centimeter. Oh. L plus B plus H is equal to 16 centimeter. And the length of its diagonal is 12 centimeter. मतलब under root of L square plus B square plus H square. कितना है डायगोनल? ये यही होता है ना डायगोनल. कितना है डायगोनल? 12 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. थोड़ा पॉलिनोमियल्स का यूज करना है अपने को. बताओ कैसे. देखो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? L square plus B square plus H square is equal to 12 square, that is 144. मिला? Now we already know L plus B plus H. ठीक है. So we will take L plus B plus H is equal to 16 and we will do squaring both sides. So what we will get? L plus B plus H the whole square is equal to 16 square. Can anyone tell me the formula? A plus B plus C the whole square. एक मिनट. प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. याद है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 16 स्क्वायर. कितना होता है? 256. अच्छा, वी ऑलरेडी नो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होता है. सो 144 प्लस 2 टाइम्स. व्हाट इज 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच? ये टी ए से है तो ये 2 टाइम्स ये सब मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? टी ए से. 144 प्लस टी ए से इज इक्वल टू 256. सो टी ए से कितना हो जाएगा? 256 माइनस कितना आएगा? करेक्ट.
Do you remember this identity? You were doing polynomials. No? पहले यहां से शुरू किया, फिर वो वाला पार्ट, and then just one step you get the answer. क्या वो लिखा नहीं? क्यों? क्या नहीं है? तो घर पे जाके वीडियो देख के लिखेगी वापस। लिखना जरूरी है सॉल्व एग्जाम्पल सारे, तो ही फिर फेयर में कर पाओगे। कौन आया ये? शिखा? शिखा, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Why are you late? Half an hour late? So my mother was out, so I couldn't join. Why? Just came home. Why you couldn't join? My mother was out, sir. She just came home. But okay. The cost of मैं कंफ्यूज था। पेपरिंग है, पैम्परिंग है, प्रिपेयरिंग है, समझ में नहीं आ रहा। पेपरिंग 4 walls of a room at rupees 1.40 is rupees 315. ये the cost of papering 4 walls at rupees 1.40. हाँ, पर मीटर स्क्वायर ही होगा डेफिनेटली. So this is the rate and rupees 315 is the cost. The height of the room is 5 meters. Find the length and breadth of the room if they are in the ratio of 4:1. So देखो इसको लिखते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसको पेपर करना है पहले तो? 4 walls मतलब lateral surface area. Okay, so you should remember this formula which says rate multiplied by quantity is equal to cost. ये जनरल फॉर्मूला है. सपोज तुम पेन खरीदने जाते हो, एक पेन का रेट है 10 रुपीज और तुम्हें ऐसी 5 पेन्स चाहिए, तो व्हाट यू विल डू? 10 multiplied by 5 is equal to 50, which is the total cost you have to pay for 5 pens, right? So ये इसमें भी एप्लीकेबल हो सकता है. रेट ऑफ पेपरिंग ऑफ वॉलपेपर कितना है? 1.40. क्वांटिटी कितना हो जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया, राइट, is equal to cost कितना है? 315. So we can find the lateral surface area. 315 divide by 1.40. That is 3150 divided by 14. Please find it. Lateral surface area बताओ कितना है? Sure? Please confirm someone. So 220. 225 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये लैटरल सरफेस एरिया. अब हाइट हमें पता है कितनी है? 5 मीटर्स. और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो पता है 4:1. हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. हो जाएगा. सो
लेंथ और ब्रेथ को हम 4x और x ले लेंगे, राइट। और LSA का फॉर्मूला लगा देंगे। LSA का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, राइट। सो लैटरल सरफेस एरिया हमको मिल गया है ऑलरेडी, 225 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L है 4x प्लस B है x टाइम्स हाइट विच इज 5। ठीक है। सो 225 बाय 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5x। यू एग्री विद दिस? ये 2 और ये 5 को यहाँ 225 के नीचे डिनोमिनेटर में लेके आए और 4x प्लस x यहाँ पे 5x बना दिया। ठीक है। अब 225 5 से डिवाइड होता है ना, कितना आता है? 45 है ना, 45। और एक 5 को यहाँ पे लेके आओ नीचे, सो 45 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इज इक्वल टू x हो जाएगा, 5 9 जा, सो x इज इक्वल टू 9 बाई 2, 4.5। सो देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा? 4x, दैट इज 4 टाइम्स 9 बाई 2, दैट इज 18 मीटर्स। और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 9 बाई 2, 4.5 मीटर्स लेंथ एंड ब्रेथ। पहले हम चेक कर ले एक बार आंसर, 18 एंड 4.5, फिर तुम लिख लो। 4.5 एंड 18 करेक्ट है। स्कूल में हो गया ये चैप्टर? चल रहा है। और तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? कौन सा चैप्टर? मैथ्स सर्कल चल रहा है। ओह ओके कूल। और क्या बचा है? अच्छा अच्छा कूल। फिजिक्स तो अपना हो गया ना, स्कूल में भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया तुम्हारा स्कूल में, मेरा नहीं हुआ है, बाकी है यहाँ पे। किसके स्कूल में? नहीं। वो बायोलॉजी में है। ये कब हुआ यार? ये कौन सा चैप्टर है यार? इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा। वेरी गुड। देखते हैं क्या पढ़ाती है तुम्हारी मैम। है हाँ नहीं होता है, पोल्यूशन केमिस्ट्री में ही होता है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर 9 CBSE बुक, इट्स देयर इन 9th ICSE। हैव यू स्विच द बोर्ड्स? ओके चलो। अभी मैंने तुम्हारी प्रीलिम्स रखी है, हैव यू सीन दैट? अटेम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस, सारे पेपर्स। क्या? बोर्ड पेपर, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क। हाँ हाँ वो सब मैंने जितना सिखाया है तुम अटेम्प्ट कर सकते हो तुम। अगर जो मेरा नहीं हुआ है अभी तक, जो बच गया है अपना, छोड़ दो उसको। तो वो तो थोड़ी मैं न्यूज़पेपर में डालने वाला हूँ। वाई यू वरी यार, आई विल टेक केयर ना। आई वॉन्ट यू टू ट्रेन योर सेल्फ, since you're done with more than 90% of syllabus, so you should be now giving 80 marks papers, because we have given many chapter wise small tests sitting at home. Now no more. Now I want you to attempt the test over here and see the how you see that what is the feeling. जैसे अगर तुम्हें स्कूल में 3 घंटे देते हैं, मैं I'll give you 2.5 hours.
टू सॉल्व 80 मार्क्स पेपर। तो पहले तो होगा कि 20-30 मार्क आ रहे हैं सिर्फ, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट प्रीलिम। आई वांट टू टेक 5 प्रीलिम्स। हाँ, देयर इज, बोर्ड इज गिविंग यू ना ऑब्जेक्टिव। बोर्ड पे पैटर्न जो है ना वही पैटर्न दूंगा मैं, और रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, डोंट वरी, अटेम्प्ट करना है तुमको, बहुत हो गया, एंजॉयमेंट के डेज खत्म हो गए। जो अभी जो प्रीलिम्स है वो कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स। ओके। क्या? पूरा पूरा सिलेबस, एसएसटी पूरा आएगा। छोड़ सकते हो तुम, इफ यू कैन लीव इट, नो प्रॉब्लम। 80 में से छोड़ के कितना छोड़ोगे? उसमें बायो भी है, फिजिक्स भी है, क्या छोड़ोगे तुम? अरे हार्डली 4-5-6 मार्क का आएगा कुछ उस चैप्टर से, जिसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मार्क्स तो मार्क्स, सही बात है। वैसे तो तुम 90 और 90 लाते हो हमेशा, मार्क्स तो मार्क्स है। पूरा होने के बाद भी तुम नहीं गिनेंगे यार, नहीं गिनूंगा बस, और नहीं बताऊंगा मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को और तुम्हारे अर्नब जी को, नहीं बताऊंगा। क्या क्या फर्क पड़ता है यार, टेंशन ले रहे हो। मार्क्स, एक एक मार्क्स का हिसाब, मार्क्स का हिसाब, पढ़ाई का हिसाब कर लिया होता तो मार्क्स आ जाते इतने। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी सिली मिस्टेक के ऐसे ही हिसाब रखूंगा मैं। रखू क्या? अभी आज शुरुआत में ही 2 मिस्टेक की है, उसके फोटो लेके मुझे डालने चाहिए ग्रुप पे। देखो सिली मिस्टेक हो रही है, क्या हो गया? अरे रुक यार, बातें कर रहे हैं हम लोग, क्या हो गया? रुक जा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कलर वॉशिंग। कलर वॉशिंग या वाइट वॉशिंग, पेंटिंग इज द सेम थिंग। The 4 walls of a room whose length is 8, breadth is 7 and height is 6 at the rate of rupees 30 per square meter. So we have to find the cost. Again I'm giving you the formula. Cost is equal to quantity multiplied by rate. हाँ, LSI से ही करना है। कॉस्ट हमें ढूंढनी है, ठीक है। कॉस्ट वी हैव टू फाइंड, क्वांटिटी क्या होगी? LSA, और रेट कितना है? ₹30। बेसिकली हमें LSA ही ढूंढना है। सो LSA का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट L plus B times H, that is 2 ब्रैकेट length is 8, breadth is 7 times height which is 6. 15 2s are 30, 30 times 6 is 180 मीटर स्क्वायर। ये है तुम्हारा लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया को क्या मल्टीप्लाई करना है हमने को? रेट। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 180 times 30 which is rupees. Easy. A wooden box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep and open at the top is to be made. ऊपर से ओपन है। Find the cost of wood required for it. If rupees 30 is the cost of 1 square meter of wood. What they are talking about? एक्चुअली ये क्वेश्चन वॉल्यूम में आना चाहिए, क्योंकि वुड एज पर वॉल्यूम सेल होता है, एज पर लेंथ नहीं। वुड की थिकनेस भी तो होगी कुछ, यहाँ पे थिकनेस को वो लोग ने नेग्लिजिबल रखा है, इसलिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? ओपन वुडन बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। करेक्ट। अगर एक वुडन बॉक्स ऐसा है ओपन, ठीक है, यहां से ओपन है, सो आई कैन मेक समथिंग लाइक दिस। सो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। आई नो एवरीथिंग, लेंथ ब्रेथ हाइट सब मुझे पता है।
बट इफ आई वांट टू मेक इट बाय वेरी थिन वुड, जिसका कॉस्ट रेट हमें पता है ₹30 पर स्क्वायर मीटर, तो मैं क्या ढूंढूंगा? इसका टोटल सरफेस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, LSA प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। वैसे तू आज रफ बुक क्यों लाई है? तो थोड़ा पेजेस छोड़ के लेके आती यार। तुम गई कहाँ थी वैसे? तो वहां से भी तो यूट्यूब चलता है नागपुर में, एज फार एज आई नो लास्ट टाइम। एंड हाउ डिड यू कम बैक? ट्रेन में तो यूट्यूब चलता है। एक्सक्यूजेस तुम्हारे पास बढ़िया वाले, हाँ एकदम। अरे इतने तो थके हुए तो फिर सही है, अच्छी बात है। देखता हूँ मैं, तुम्हें मार्क्स अच्छे आ गए, तुम खुश हो गई हो ज्यादा क्या? हाँ, आई एम बीइंग सार्कास्टिक एंड यू आर सेइंग हाँ सर। बेटा रुक जा, तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू H प्लस LB। ठीक है, सो लेंथ कितना है 1.5, ब्रेथ कितना है 1.25। देखो ये जो डेप्थ है ना 65 सेंटीमीटर है, 65 मत लेना, 0.65 लेना, प्लस 1.5 टाइम्स 1.25। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है। 0.65 इंटू 2 कर दो पहले, 1.3 इंटू 1.5 प्लस 1.25 कितना होगा? 2.75। ठीक है, इसको अलग रखो और प्लस 1.5 इंटू 1.25 कितना आता है ये कैलकुलेट करो और उसको यहाँ पे रखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ऐड करो, सिंप्लीफाई करो। कम ऑन, लॉट ऑफ कैलकुलेशन। जो भी आंसर आएगा ना, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना इन दी एंड टू गेट द टोटल कॉस्ट। कम ऑन, लेट्स सी हु डज इट फर्स्ट। तू हंस रही है। क्या हुआ? रॉन्ग लग रहा है, कैलकुलेशन चेक करो। 1.3 टाइम्स 2.75, 1.5 टाइम्स 1.25, क्या टोटल? टोटल मतलब एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड 5.45 इंटू 30 कर। I don't know who is correct, who is wrong. Sorry? करो करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। वी फर्स्ट एम फॉर परफेक्शन, ओके, देन फॉर स्पीड। स्पीड तो बाद में हो जाएगी डेवलप। ये बहुत लोग मैं देख रहा हूँ पीछे जाके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो पीछे एक दुनिया बन जाती है अपनी, यूनिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डोंट डू इट। बताता हूं, सपोज ये तुम्हारा पेज है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। सर जगह बनाओ दया, जगह बनाओ। सर 1 मिनट रुको। सर अरे सर आ रहे सर, रुकना। हाँ, जैसे ये तुम्हारा पेज है, तो ये पेज में एटलीस्ट 1/3 जगह ले लो। ये रफ वर्क है तुम्हारा, यहीं पे करना है। चाहिए तो ज्यादा ले लो जगह, पीछे मत घूमो बार बार, उसमें गलती आधी होती है तुम्हारी। हाँ, अभी कौन बोल रहा था सर? सर I was. प्लीज टेल मी। Sir, the answer according to me is 6.325.
and that is the area of wood. Yes. Okay. So we are getting 3 different answers up to now. Sir, Yes. Sir? Yes. I got the area as 5.45. 5.45 same दो with me. मैचिंग आंसर्स है अपने पास. 5.45. सर मुझे भी 5.45 ही आया है. Oh, very nice. So 3 people have got 5.45. So probability of 5.45. Very nice. 5.45 into 30 करा. Sir, 5.450 is the correct 160.5. answer. And the cost is 163.50. 163.5. 50 लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर गलती से we think about it as 5 पैसा. Actually it is 50 पैसा. 05 will be 5 पैसा. So 50 लगाना जरूरी है. कितने क्वेश्चन है यार? 12, 13. ओके ठीक है. हम किस पे हैं? 11th पे हैं. Yes. The cost of papering 4 walls of a room at rupees 1.80 per square meter is rupees 405. ये तो पहले किया हुआ है हमने. हाँ, ये मत करो. खुश हो गए सब. अरे बच गया, एक क्वेश्चन कम हो गया मेरी लाइफ का. A classroom is 7 meter long, 6.5 meter wide, and 4 meter high. It has one door of 3 meter by 1.4 meter and 3 windows of 2 meter by 1 meter. The interior walls are to be whitewashed. The contractor charges rupees 10.50 per square meter. Find the total cost of whitewashing. TSA तो मतलब फ्लोर पे भी पेंटिंग करने वाला है लगता है. देखो ऊपर करेंगे लेकिन ऊपर छपरा भी हो सकता है ना. वी डोंट नो. लेटरल सरफेस एरिया. क्यों भाई, गांव में तो मतलब तेरे क्या महल बनते हैं क्लासरूम में? हो सकता है यार, ऊपर रूफ्स हो सकते हैं ना, वो टिन रूफ भी हो सकता है. सो ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ वॉल को पेंट करना है. हाँ, क्या बोल रहा है मानस? सर लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे सर, और साथ में डोर का वो जो 3 विंडोज है उनका एरिया निकालेंगे, और उनका एरिया ऐड करके लेटरल सरफेस एरिया जो आएगा उससे माइनस कर देंगे. यू आर करेक्ट. और सो फिर बेसिकली हमको सिर्फ वॉल का एरिया चाहिए. हाँ बोलो, क्या बोल नहीं बोलो. सीलिंग जरूरी नहीं है, छपरा भी हो सकता है. तो क्लासरूम छपरे वाला क्लासरूम नहीं होता क्या गांव में? मतलब देखा नहीं है तुमने? चलो सर देखा फिर तो तो 4 वॉल्स का क्यों निकाले? एक बार कहीं पे खिड़कियां होंगी, कहीं पे गेट होगा, तो वो जगह भी तो माइनस करनी होगी. समझा नहीं मैं क्या बोल रही है. सर कुछ नहीं. तो सबसे पहले वी विल फाइंड लैटरल सरफेस एरिया. ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ वन डोर प्लस एरिया ऑफ 3 विंडोज. LSA में से ये माइनस करने के बाद जो बचेगा एरिया, उतने ही एरिया पे पेंट करना है. डोर तो खाली जगह है, उस पे तो पेंट करना नहीं है. विंडो भी खाली जगह है, वहां भी पेंट नहीं करना है. तो LSA में से ये जो डोर और विंडोज का एरिया है टोटल, वो माइनस करके जो बाकी का एरिया बचेगा, दैट इज द एरिया टू बी पेंटेड. और वो एरिया टू बी पेंटेड को 10.50 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल फाइंड द टोटल कॉस्ट.
सही है। कितना होता है 8 इंटू 13.5? एग्जैक्टली। कितना होता है? सॉरी, क्या बोल रहा है? 108 माइनस 10 करना है सिर्फ। एट ना, सॉरी। सर यस। सर 113.5 into 8 will be 188, right? नो, दे आर नॉट एग्रीइंग विथ यू। 13 एट जा कितना होता है वैसे? 13 एट जा, हाँ 104 होता है, करेक्ट है। 4 ऐड हो जाएगा, हाँ सही है 108, इट्स करेक्ट। यू आर रॉन्ग मृण्मयी। Okay. ओके, ये आ गया एरिया ऑफ द रिमेनिंग वॉल इनटू 10.50 करना है कॉस्ट। ये है एरिया टू बी पेंटेड। कॉस्ट आ जाएगा 97.8 टाइम्स 10.50। क्या हुआ? कम ऑन गाइस, फास्ट। आ गया, बताओ। सर आ गया। यस प्लीज टेल मी ऑनलाइन। So 1026.9, Correct. approximately 1027. 1027 approximately 1026.90। सही है, यू गाइस आर राइट। छोड़ दो तुम लोग के ऊपर, मैं नहीं हेल्प करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए लास्ट है, इस पार्ट का लास्ट है। यू हैव इन दिस चैप्टर, डू यू हैव सिलेंडर, यू हैव कोन, Yes, you have sir. sphere, Yes, sir. hemisphere? Yes, sir. Yes, sir. Very good, I'm so happy. Come on, come on, come on. Think.
हो रहा है, हो जाएगा। Sorry for that disturbance. You guys don't know Sonali ma'am? You know Sonali? Sonali opened a restaurant in Goa. So today she sent the food to Neha Dhupia. You know Neha Dhupia? The celebrity Neha Dhupia. She's an actor. She loved the food. Let me read the question. Length is 1/3 times the breadth. Height is half the length. Cost of whitewashing is given. Rate is given. तो LSA मिल जाएगा, क्या किया तुमने? Find the cost of tiling the floor at the rate of ₹8 per meter square. तो बेसिकली हमें टाइलिंग द फ्लोर के लिए फ्लोर का एरिया चाहिए, फ्लोर के एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं। Length is equal to 1/3, that is 4/3 times breadth. सही है ना? And height is half the length. So height is equal to L/2 और L is equal to 2H. यहां से भी हम लिख सकते हैं कि ब्रेथ इज इक्वल टू 3L/4, हाइट इज इक्वल टू L/2, ब्रेथ इज इक्वल टू 3L/4। मतलब सब कुछ हमें L के टर्म्स में मिल गया। अच्छा, और हमें दिया है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 291.20 और रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो वॉल्स का जो एरिया है दैट इज LSA, that will be cost of whitewashing upon rate of whitewashing. ठीक है, cost is 291.20, rate is 2.60. So 2912 by 26, how much it comes to? Sorry? Is it true? Is it correct? Yes, sir. Okay. So LSA का फॉर्मूला क्या है? 112 is equal to 2 bracket L plus B times H. 2 को ये साइड ले लेंगे, 112/2 is equal to L plus B. देखो L को L ही रख रहा हूं, B को मैं लिख रहा हूं 3L/4 और हाइट को मैं लिख रहा हूं L/2। ठीक है, सबसे पहले ये जो 2 है उसको वो साइड शिफ्ट करूंगा। See, I'll show you. 112/2 into 2 is equal to L plus 3L/4, which will become 4L plus 3L/4, which is 7L/4. सही है ना? Times L. 2 कैंसिल हो जाएगा। 112 is equal to 7L² 112 times 4/7 is equal to L²। सही है? 7 और 112 जाता है ना, 16 7 112 है ना, तो ये 16 आ जाएगा। सो L² is equal to 16 4 64। सो L कितना हो जाएगा? 8।
8 मीटर। अगर लेंथ आ गया तो हाइट और ब्रेथ भी आ जाएगा। हाइट की तो हमें जरूरत नहीं है, ब्रेथ चाहिए। ब्रेथ इज 3L/4, दैट इज 3 × 8/4, 4 2 ज़ा 8, 6 मीटर आ गया तुम्हारा ब्रेथ। ये किसको आया, यहां तक किसको आया? आया था? कूल। चलो, तो अब हमें चाहिए एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि फ्लोर को टाइल करना है ना अपने को। तो एरिया ऑफ फ्लोर इज LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 8 × 6 कितना होता है, 48 मीटर स्क्वायर। और हमें फ्लोर पे टाइलिंग लगानी है, और टाइलिंग का रेट कितना है, 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज इक्वल टू रेट टाइम्स एरिया। हाँ, जो हमारा फ्लोर का एरिया है, दैट इज रेट कितना है टाइम्स एरिया कितना है 48। कितना होगा ये? किसी और को ये आंसर आया ऑनलाइन? Sir, I got the answer till LSA's value. ओके, मतलब यहां तक 112। हाँ सर। अच्छा, मेरा भी उधर तक ही आया। बट डिड यू नोट इट डाउन? मैंने बाद में जो किया है, तुमने नोट किया क्या उसको? सर मैं देख रही थी, आप जरा रखेंगे वो? हाँ, रख रहा हूँ ना, यहाँ पे ही रखा है। लो, इसके बाद सिर्फ तुम्हें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, दैट इज 48 × 8। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेंथ ऑफ अ रूम इज 1/3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो मैंने वही चीज यहां पे लिखा, बट 1/3 को मैंने लिखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 1 ज़ा 3 + 1 4/3। सो लेंथ इज 4/3 टाइम्स द ब्रेथ। तो ब्रेथ को मुझे लेंथ के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेथ को इधर ही रखूंगा, 3 को वो साइड ले जाऊंगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 को डिवाइड कर दूंगा। आया? तो ये क्या किया मैंने, ब्रेथ को L के टर्म्स में लिखा। हाइट इज हाफ द लेंथ, H इज L/2। तो मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को लेंथ के टर्म्स में मैं रिप्रेजेंट कर दिया। एंड आई got the lateral surface area by dividing cost and rate, and then I put the formula for lateral surface area. In this formula I put the value of B, which is 3L/4, and height, which is L/2, and then I simplified it by taking LCM, and further simplification I got the length. Once I got the length, I can easily find the breadth, then the area of the floor, and then the cost. That is how I did it. समझ में आया? ठीक है, so these full part, like all the questions are based on surface area of cuboid and cube. अभी वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो tomorrow is what, Friday? Tomorrow is Thursday. Can I take a class tomorrow? Extra? What class? Yes, sir, we have a holiday tomorrow of Makar Sankranti, so you can take it in the morning also. Yeah, a little early I can call you, na? Although I have class in the morning. Okay, let me see कैसे schedule बनता है. I have class at 2:30 onwards. I have class in the morning at 9 o'clock and then 2:30 onwards. So in between, or maybe
one class I have at 5:30, which I'm going to take in the morning. You are not free at 5:30, you guys? Who's with Suparna ma'am? Separate. Acha, okay. That's